ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मोबाइल में ओपन कर सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 14। भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। चलो इसमें ओपन कर देते हैं। इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सबद्यते। तो कल वाले श्लोक में भगवान बताए कि चारों वर्ण है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म के हिसाब से मैं बनाया, फिर भी मैं अकर्ता अव्ययम, इस तरीके से भगवान कल बताए थे। हम्म मैं माम कर्माणि लिम्पन्ति, ये जो सब भौतिक कार्य जो है इनमें भगवान लिप्त नहीं होते, लिम्पन्ति या इन सबसे प्रभावित नहीं होते। न मैं कर्म फले स्त्रिया, और नहीं भगवान को तो कर्म फल है उसकी कोई इच्छा है? भगवान को क्या, भगवान के शुद्ध भक्तों को ही नहीं रहती कर्म फलों की इच्छा, है कि नहीं? भगवान के शुद्ध भक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं, कर्मों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान को इस तरीके से कोई जान लेता है कि भगवान भौतिक जगत के पने हैं, वो भौतिक कार्यों में से प्रभावित नहीं होते और नहीं उनको कोई कर्म फल की इच्छा है। बोल रहे हैं इस प्रकार माँ मुझको, यह मतलब जो व्यक्ति अभी जानाति अविश्वपेन जो जानता है, कर्म भी न सबद्यते, कर्म के द्वारा वो अ, बंधता नहीं है, वो कर्म के द्वारा वह नहीं बंधता है। कर्म भी न सबद्यते। ओके बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मां लिम्पन्ति कर्मपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न मे न कर्मफले स्पृहा। स्पृहा इति माम यो अभिजानाति इति इति मां मां योजयति कर्म भी न सबद्यते। कर्मभिः कर्मभिः न सिद्ध्यति। सिद्ध्यते। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। इसमें ओपन नहीं, हैंग हो रहा है लैपटॉप थोड़ा। मोबाइल से पढ़िए नहीं तो। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reaction of the work. पढ़िए परपट। Perfect. As there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong, or that the king is not subject to the state laws. Similarly, the Lord, although he is the creator of this material world, he is not affected by the activities of the material world. He creates and remains aloof from the creation, whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity for lording it over material resources. The proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers,
but the workers are themselves responsible. The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. For advancement of sense gratification, the living entities are entangled in the work of this world, and they aspire to heavenly happiness after death. The Lord, being full in himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. The heavenly demigods are only his engaged servants. The proprietors the proprietor never desires the low-grade happiness such as workers may desire. He is aloof from the material action and reaction. For example, the rains are not responsible for different types of vegetation that appears on earth. Although without such rains there is no possibility of vegetation, Vedic Smriti confirms this fact as follows: Nimitta matram evasu सृजनं सर्गकर्माणि प्रथमकरणानि भूता यतो वैसृज शक्तयः. In the material creation, the Lord is only the supreme cause, and immediate cause is material nature, by which the cosmic manifestation is made visible. The created beings are of many varieties, such as the demigods, human beings, and lower animals. All of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. The Lord only gives them the proper facilities for such as activities and regulations of the modes of nature, but He is never responsible for their past and present activities. In Vedanta Sutra, it is confirmed, Vaishyamya Naigrahamne Naigrahamne na uh, Sapekshtatva. The Lord is never partial to the living entity. The living entity is responsible for his own acts. The Lord only gives him facilities through the agency of material nature, the external energy. Anyone who is fully conversant with all the of intricacies of this law of karma or fruitive activities does not become affected by the results of these activities. In other words, the person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness, and thus he is never subjected to the laws of karma. One who does not know the transcendental nature of God and who thinks the activities of the Lord are aimed at fruitive results are as are the activities of the ordinary living entities, certainly become entangled himself in fruitive reactions. But one who knows the supreme truth is a liberated soul fixed in Krishna consciousness. प्रभु जी इसमें ऐसा बताया गया है कि जैसे जैसे किसी किंग के लिए ऐसा मतलब स्टेट लॉज मानना वो नहीं होता, जरूरी नहीं होता, मतलब वो क्योंकि वो किंग जो है वो रूल्स बनाते हैं तो उनको वो रूल्स को स्टेट लॉज जैसे किंग पे लागू नहीं होते, वैसे ही मटेरियल लॉज जो हैं वो भगवान पे लागू नहीं होते, वो इन सब के परे रहते हैं। और ऐसा बताया प्रभु जी कि वो इधर पे जैसे अलग अलग टाइप के लिविंग एंटिटीज होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स होती हैं, डेमीगॉड्स होती हैं, या फिर और जो एनिमल्स होते हैं, वो सब अपने पास्ट का मतलब पास्ट अब उनके जो पास्ट लाइफ के जो भी उनके कर्म है उनके अकॉर्डिंग बनते हैं। अगर अच्छे कर्म है तो उन्हें अच्छे मतलब अगर अच्छे कर्म है तो उन्हें ह्यूमन या फिर डेमीगॉड्स का बर्थ मिलता है, और अगर बहुत ज्यादा लो है तो फिर उन्हें एनिमल्स का या फिर नीचे के लोगों में जन्म मिलता है, ऐसा बता रहे हैं। और तो वो जी मेरे को ज्यादा तो नहीं समझ में आया इसमें। मतलब कौन सा समझ में आया? ये जो प्रभु जी लास्ट वाला पैराग्राफ था, कौन सी लाइन? In the ये material creation, the Lord is the only the supreme cause.
द इमीडिएट कॉज इज मेटेरियल नेचर, ये समझ में नहीं आया? जी प्रभु जी। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? हम्म, मतलब प्रभु जी सुप्रीम कॉज का मतलब वो समझ नहीं आया। सुप्रीम, इसमें अपन वो करते हैं ना कि कोई भी चीज होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं खोज। लेकिन ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, हर चीज की कारण के पीछे जाएंगे। कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, जो सुप्रीम कॉज है वो कौन? भगवान मिलेंगे। इसलिए तो बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन अ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसके और कोई कारण होते ही नहीं, हम कुछ हम भी मतलब अ, हमारा भी कोई रोल है ही नहीं, मतलब अरे भगवान करेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं। उसके इमीडिएट कॉज भी होते हैं, इंटरमीडिएट कॉज भी होते हैं, और बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कोई पेड़ का पत्ता हिल रहा है तो इमीडिएट कॉज क्या है? कि भैया हवा चली इसलिए हिला ना, या उसका वजन कम है इसलिए हिला, या फिर उस पेड़ को आपने ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जहाँ पे हवा लगी उसको। बहुत सारे कारण है, इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज जैसे इसमें क्या बताया, मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर है तो इमीडिएट कॉज, उसी से तो अपने को तुरंत रिएक्शन मिल जाती है। तो फिर उसके पीछे जाएंगे, हवा क्यों चली? तो पवन देव ने चलाई, पवन देवता ने चलाई हवा। पवन देवता ने क्यों चलाई? क्योंकि फिर भगवान का आदेश था उनको। तो अल्टीमेटली जाएंगे तो भैया वो भगवान पे आ जाएगा हर चीज। तो सुप्रीम कोर्ट तो भगवान हो गए। और फिर इमीडिएट कॉज में बहुत सारे मटेरियल नेचर ही आता है बेसिकली, है ना। लॉज ऑफ कर्मा आता है? तो यमराज है, ये सब है, तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको रिएक्शन मिलती है? तो इंटरमीडिएट कॉज इमीडिएट कॉज में सब मटेरियल नेचर, हमारे लॉज ऑफ कर्मा, ये सब चीजें आ जाएंगी उसमें। नहीं, भगवान सैंक्शन करते हैं पावन देवता को सबको, मतलब सारे डेमिगॉड्स को सबको, तभी तो जाके चीजें होती है ना। और भगवान देखिए इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है मतलब। हाँ, सब कोई भगवान तो पार्शियल नहीं है। समो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्य अस्ति न प्रिय। भगवान बोलते हैं सब मेरे को समान है, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ न किसी से प्रेम करता हूँ। लेकिन एक कंडीशन लग जाती है, हाँ? जो मेरा प्रेम से भजन करता है वो मेरे को बहुत प्रिय है। जो बस्ती स में प्रिय, जो मैं मेरा प्रेम से भजन करता है। जैसे पेरेंट्स को सभी प्रिय होते हैं, सारे ही बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बच्चा उनकी आज्ञा मानता है वो ज्यादा प्रिय होता है ना। तो वही बात है। तो ये बहुत जरूरी है भगवान का ट्रांसेंडेंटल नेचर समझना है। भगवान को भी हमारी तरह समझेंगे तो फिर है ना, तो फिर तो सरेंडर होने की कोई प्रश्न ही नहीं होता भगवान को। वो भी लोजो कर्मा में फंसे हैं, वो भी कर्मफल की इच्छा करते हैं, कर्मफल भोगना चाहते हैं, ऐसा नहीं। भगवान सबके परे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है सब चीज़ों की। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जानकर, कृतम कर्म पूर्वे है अपि मुमुक्षु भी। मुमुक्षु मतलब क्या होता है? इक्सु मतलब चाहने वाला, मुमुक्षु मतलब मुक्ति चाहने वाला। तो जो मुक्ति चाहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा क्या हुआ? पूर्वे है, पूर्व में भी कृतम कर्म, इस प्रकार से कर्म किया गया। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जानकर। इस प्रकार जानकर, पिछला श्लोक में बताया ना, क्या जानकर? ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ गॉड। हाँ, correct। वो कर्म फल में नहीं फंसते और को नहीं कर्म फल की इच्छा होती है उनके। इस प्रकार से वो जान के वो कर्म किए अपना। तो क्या वो भी, है ना, मुक्ति जो प्राप्त करने वाले लोग, मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग भी इस प्रकार से कर्म किए कि भगवान का ट्रांसेंडेंटल नेचर है। हाँ, वो भी ऐसे ही किए पहले कर्म। इसलिए अर्जुन तुम भी ऐसे ही करो, है। कुरु कर्म एवं तस्मात् त्वम, तस्मात् मतलब इसलिए, तो मतलब तुम, कुरु मतलब करो, कर्म एवं कर्म में ही,
एवं, तो आप भी ऐसे ही कर्म करो। पूर्वे है पूर्वोत्तरम कृतम, जैसा कि पूर्व में पूर्वोत्तर जो ऋषि मुनियों ने, मुक्ति चाहने वालों ने जैसे किया था, वैसे ही आप भी करो। तस्मात् त्वं पूर्वे ही, बाय द प्रेडिसेसर्स, पूर्वोत्तरम इन एंशिएंट टाइम्स, पूर्वोत्तरम मतलब पुराने समय में, कृतम मतलब जैसा किया है। ठीक है, बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा एवं कृतं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि पूर्वे मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं कुरु कर्मैव कुरु तस्मात् पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतं। पूर्वे पूर्वे हि पूर्व पूर्वतरं कृतं। पढ़िए हर्षवर्धन ब्रो। All the liberated soul in the ancient times acted with his understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their heart, and some of them are materially free. Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. Those who are full of dirty things can take the line of Krishna consciousness for a gradual cleansing process, following the regulated principle of devotional services. Those who are already cleansed with case of the impurities may continue to act in the same Krishna consciousness so that other may follow their exemplary activities and thereby be benefited. रोजी थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते चलो। वो अच्छा रहेगा। रोजी, आपको यहाँ पे दो क्लासेस ऑफ मैन के बारे में बताया गया है। पहले तो वो लोग जो जिनका माइंड बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, पूरी मटेरियलिस्टिक थिंग से भरा रहता है, और दूसरे वो लोग जो इस मटेरियलिस्टिक चीजों से पूरा फ्री रहते हैं। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो दोनों, मतलब दोनों टाइप के लोग रहते हैं, उन दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। जो लोग अगर अभी जो जिनका डर्टी माइंड है, अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरा फॉलो करेंगे तो और अपने आप को लिबरेट कर सकेंगे। अगर वो जो पूरे रेगुलेटेड प्रिंसिपल रहते हैं उनको फॉलो करेंगे तो वो खुद को और लिबरेट कर पाएंगे। और जो ऑलरेडी इन मटेरियलिस्टिक चीजों से फ्री कर चुके हैं खुद को, वो खुद को एज एन एग्जाम्पल खुद को सेट कर पाएंगे, जिससे बाकी लोग उनको फॉलो करें। जैसे कि प्रभु जी अभी एक लेक्चर में आपने बताया था कि जो लोग रहते हैं, अगर जो लीडरशिप जो में क्वालिटी रहती है, उनको देख के बाकी लोग फॉलो करते हैं। उसी की बात यहाँ पे की गई है। Foolish person or neophytes in the Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. Arjuna's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord. One need only know how to act. To retire from activities of Krishna consciousness and to sit a fool, making a show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in the field of activity for the sake of Krishna. Arjuna is there here advised to act in Krishna consciousness, following the footsteps of the Lord previous disciples, such as the sun god Vavasan, as mentioned herein before. The Supreme Lord knows all his past activities as well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. Therefore, he recommended the act of sun god who learned his art from the Lord some millions of years before. All such students, Lord Krishna, are mentioned here as past liberated person engaged in the discharge of the duty allotted by the Krishna. Which is ऐसा कृष्ण को अर्जुन जी ने, आप जब पूरा युद्ध का वहां पे समय आया था तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, मतलब जो मेरे यहाँ सामने वाले भी जो जिनसे युद्ध करने वाला हूँ, मेरे घर वाले हैं, उनसे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। इन्हीं सब प्रभु जी दुखों में उन्होंने बोल दिया था कि मैं सब छोड़ दूंगा, ये सब तो मेरे को नहीं लड़ना है, आप युद्ध नहीं करना, अपने ड्यूटी से
मतलब वो अपनी ड्यूटी से पीछे हटने की बातें कर रहे थे। तो वहां पे जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने अपने प्रीवियस डिसाइपल्स का उन्हें एग्जाम्पल लेके बताया कि अगर वो उनके फुट स्टेप पे चलेंगे तो उनको भी अच्छी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जैसे कि उन्हें अपने सन गॉड का नाम, सन गॉड का एग्जाम्पल लेके बताया था कि जो जो उनसे मिलियन से और फिर पहले जिनने उनसे इनका आर्ट सीखा, जो उन्होंने सब चीजें उनसे सीखी थी लॉर्ड कृष्णा के फुटस्टेप पे चल चल के, तो वो भी अपनी ड्यूटीज को इस तरह से फॉलो करें। यस। तो वही बताया कि किस तरीके से भाई पहले में भी बहुत सारे मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु जो लोग हैं, जो मुक्ति चाहने वाले, या जो मुक्ति के मार्ग पे जो थे, या भगवत धाम के मार्ग पे जो थे, वो इस प्रकार से मेरे ट्रांसेंडेंटल नेचर को जानकर ही अपना कर्म किए, और वो सफल हुए। तो उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो महाजनो ये न करता है सपंथा, ऐसा बोलते हैं। महाजन जिस रास्ते पे जाते हैं वही हमारे लिए रास्ता है। हमको अलग से कुछ नया नहीं करना है। हमारे गुरु महाराज, हमारे महाराज जैसा कर रहे हैं, जैसा हमको बताते हैं, जिस रास्ते के लिए बोलते हैं, वो जिस रास्ते पे जाते हैं वही हो गया। वैसे महाजन केवल 12 है, 12 महाजन है ना। शिव वर्मा जी, है ना, यमराज, बलि महाराज, जनक महाराज, इस तरीके से 12 महाजन है जो शास्त्रों में वर्णन आते हैं। तो उन्होंने जो मार्ग पे गए हैं वो जो बताते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा। महाजनों ये नहीं कहता है सपंथ है। तो वो श्लोक था, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तते इतरो जना, जैसा लीडर करता है वैसे वैसा फॉलोअर करते हैं। तो ऐसे इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करो। आप जो लीडर्स हैं, आचार्य जो हैं, उनके लीडर्स को, उनके, इसलिए जो इस्कॉन में भी हम देखते हैं जो सन्यासी है, महाराज हैं, गुरुजन जो है ना, तो वो जैसा बोलते हैं, वो जैसा करते हैं, हम भी वैसे करने का प्रयास करते हैं, है ना। हम सीधा थोड़ी कुंती महारानी को थोड़ी फॉलो कर सकते हैं। हम सीधा थोड़ी जो कैरेक्टर्स है उनको सीधा फॉलो नहीं कर सकते। समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीजें। तो जो कई बार क्या होता है कि फुलिश पर्सन होते हैं, या जो नियोफाइट होते हैं, नियोफाइट मतलब भक्ति में एकदम नए, न्यू फाइट, जो फाइट करते रहते हैं। तो जो नियोफाइट होते हैं वो क्या, या तो बोलते हैं कि चलो चलो छोड़ो सब, अब घर बार, अब तो बस सन्यासी ही बनना है। या फिर क्या करेंगे वो, थोड़े समय में वो, अरे माला नहीं होगी यार, ये सब नहीं होता, छोड़ो इसको। तो इस तरीके से क्या, वो फिक्स्ड अप नहीं होते किसी भी चीज में, ऐसा। तो वो अपनी चीज से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं बेसिकली। इस्कॉन में नहीं होता है, इस्कॉन के बाहर होता है ज्यादा। उनको लगता है कि चलो छोड़ो जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां हम बहुत, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। देखा, आजकल लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं, क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है ना। पत्नी की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इतना बड़ा बोझ है। फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जिम्मेदारी लेना मैन है, भले ही गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, तो मैटर नहीं करता है। ब्रह्मचारी में अलग प्रकार की जिम्मेदारी है। इंद्रियों को नियंत्रित नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी है, सेवा करने की जिम्मेदारी है भगवान की, है। तो इस प्रकार की जिम्मेदारी है। गृहस्थ में अलग प्रकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी सबको लेनी होती है। ऐसे नहीं बोल सकती मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अर्जुन भी तो ऐसे बोल रहे थे ना, मैं जंगल में जाके, जंगल में जाके भीख मांग लूंगा, है ना। वो ऐसे बोले कि हम जंगल में जाके भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं लड़ाई युद्ध नहीं करूंगा, तो जिम्मेदारी से बच रहे हैं ना। तो ऐसा, तो वास्तव में जो पूर्व में जो कौन है, जैसे विवस्वान है, उनको भगवत गीता सुनाई, ये सब चीजें। और कुछ, और कुछ पॉइंट कोई, क्वेश्चन कमेंट? ये प्रभु जी। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं अपन। मंत्रा श्रीमद् भगवत गीता की जाए, प्रभुपाद की जाए, लिखा है बहुत प्रबंधे, हरि हरि बोल।